In each Veda has Shanti Path. In English, we say invocation, but we have to know the actual Sanskrit terminology that is called Shanti Path. This is the portion where we are praying to establish peace unto our own self, unto the others, and for the whole universe, irrespective of caste, creed, and religion, race, everything. And every Shanti Patha will get the indication of sadhana and siddhi. In Kenopanishad, Shanti Path, the main thread of that is apyayan, like invitation, and very gentle, humble uh, apyayan. For what? For the limbs, for the speech, for the vital air force, for the eyes, for the ears, for strength, for everything, not discarding them. We have to nourish each and everything. We have to respect each and everything. Because Sarvam Khaluidam Brahman, Brahma Satya Jagan Mithya, we can misunderstand all those statements and we can start disrespecting our own body, mind, and intellect because of its failure for the years, because of their misbehavior for the years. Upanishad, this Kena Upanishad is telling no. You have to respect, appreciate, acknowledge everything. By fighting, the truth will not be established. This is the main theme of Vaidika Shiksha Pranali, Vaidika education system. So first, in Kenopanishad, there is a wonderful bhashya commentary. This is called Upadghata Bhashya. I will not read the bhashya. Shankaracharya ji has written a very famous commentary on Kenopanishad. So I will just try to translate it for you. Just one line I will read to pay my salutation and reverence to the Acharya work. Keneshitam ityadi Upanishad Parabrahma Vishaya Vaktavya iti Navam Navamasya Arambha. Keneshitam ityadi Upanishad परब्रह्म विषय मतलब सामवेद की अंतर्गत तलवकार ब्राह्मण की 8
अध्याय की बात केनेशितम इत्यादि परब्रह्म विषय उपनिषद बोलने की जरूरत है, इसलिए ये 9th चैप्टर चालू हो रहा है। कहाँ पर? सामवेद में। क्लियर? वेद के अंदर ही उपनिषद रहते हैं। उपनिषद वेद की कोई बाहर की वस्तु नहीं। उसके बाद ही 9वें अध्याय से ब्रह्म विद्या के बारे में चर्चा हुआ है। इसीलिए 9वें अध्याय से ये ब्राह्मण भाग को उपनिषद बोल रहा है। अभी ये जो 9वां अध्याय चालू हो रहा है, इसके पहले कर्म के विषय में, उपासना के विषय में बताया गया है। अभी केनोपनिषद आरंभ हो रहा है ब्रह्मन के विषय में। तो हमें कोई कोई व्यक्ति है जिन्होंने इस वेद को पढ़ चुका है या पहले 8 अध्याय पाठ कर चुके हैं, जहां पर बहुत सारे रिचुअल्स है। बताया है कि इस रिचुअल को फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारा ये होगा वो होगा। बहुत सारे कर्म उपासना पद्धति, क्योंकि सारी उपासना पद्धति हमारे वेद में ही है। और सारे उपनिषद हम लोग, मतलब उपासना पद्धति हम लोग वेद से ही लेते हैं। तो अभी ये 8 अध्याय के साथ ये जो 9वें अध्याय में केनोपनिषद चालू हो रहा है, इनके साथ संबंध क्या है? इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य के समय इस पूर्व की 8 अध्याय के बारे में बोल रहा है। यू जस्ट थिंक, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई चीज प्रायोरिटी बन जाए तो व्यक्ति क्या कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी सिर्फ उपनिषद नहीं पढ़े कि उपनिषद पढ़कर उपनिषद का भाष्य लिख रहे हैं। उन्होंने पूरा वेद पढ़ लिया और देखा उपनिषद के पहले क्या है, उपनिषद के बाद क्या है, इस उपनिषद की जरूरत क्या था। बिकॉज एवरीथिंग ही वांटेड टू नो। इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, those who are having a lot of complaints about their spiritual growth, that they are trying for the years but not getting the adequate result, please ask yourself, did I put, or did I keep this subject in my life as a first priority? Swamiji, we are samsaris. Because after the class, question will come, people will raise hand. They will start telling, no, 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 we are the normal people, na, common people. So Ramakrishna used to say, যে কুমড়ে পোকা তেলো পোকা ভাবতে ভাবতেই সেটা সে হয়ে যায়। लोग खुद के बारे में अगर भूत 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 सोचेंगे ना, तो भूत बन जाते हैं। कोई बच्चों को आप बचपन से यही समझाने की कोशिश करो कि तू बुर्बाक है, तेरा दिमाग कुछ नहीं है, वो एकदम ओल्ड एज तक यही विश्वास करेंगे। तो देखो, मैं तो थोड़ा कम बुद्धिमान हूं, मेरा बुद्धि नहीं है।
At the same way, you start yourself telling or your children, you can do everything else. You must do. Only you can do. अगर किसी से होगा तो ये तुम ही हो. देखिए, अगर साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप रियली साधना करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो खुद को संसारी बोलना छोड़ दीजिए. आप मुझे मत समझाने की कोशिश कीजिए प्लीज, कि हम लोग संसार में रहते हैं. साधु भी संसार में ही रहते हैं. हर साधु, एक भी स्वामी को दिखाइए जो संसार में नहीं रहते हैं. कौन स्वामी बोलते हैं कि मैं संसारी हूं? आप भी मकान में रहते हैं, वो भी मकान में रहते हैं. आपका भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका आपसे 10 गुण ज्यादा है. सिर्फ एक बीवी, एक बच्चा लेने से संसार नहीं होता. और एक दो मेड बस संसार खड़ा कर दिया, बोल रहा है मैं संसारी हूं, हमारे लिए क्या होगा. नहीं 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 नहीं, आप जानते नहीं हमारा कितना रिलेटिव है. हमारा पार्टी लगे रहते हैं, शादी रहते हैं. अभी शादी का सीजन चालू होगा कुछ दिन के बाद. आपको जितना कमिटमेंट रहते हैं उसके 10 गुण ज्यादा कमिटमेंट रहते हैं एक स्वामी का. प्लीज डोंट give any excuse that I am samsari, that is why I can't do. पहले तो खुद को ये गलतफहमी में रखना बंद कर दीजिए कि मैं संसारी हूँ, कॉमन मैन हूँ. क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी इनसाइड दैट आई एम ए साधका और आई एम ए साधिका. Unless and until you create a new identity, you can't do accordingly. जब कोई लड़का की और लड़की का शादी हुआ, they started making a new identity. We are married. Someone becomes a wife of someone, someone becomes a husband of someone. Then their roles and responsibilities starts accordingly. The day a woman becomes pregnant, inside her a motherhood grows up. Then after giving birth, another role and responsibilities. सिर्फ उनका नहीं, उनकी पति का भी. So whenever you create a new identity, your roles and responsibilities start. For doing sadhana, create a new identity that I am a spiritual aspirant. मैं एक साधक हूं. सिर्फ यही चीज खुद को 50 बार बोलिए, 100 बार बोलिए. आई एम ए साधका. बाकी समय आप बोलिए आई एम ए संसारी, आई एम ए मदर, आई एम ए फादर, आई एम ए वाइफ, आई एम ए डॉटर. और उसके पहले रिस्पॉन्सिबल लगा लीजिए. लेकिन उसके साथ भी आई एम ए साधका और आई एम ए साधिका. प्लीज. अदरवाइज उपनिषद विल नॉट स्पीक विथ यू. उपनिषद की शब्द उपनिषद में ही रह जाएंगे. आपका रिजल्ट, आपसे पूछूंगा क्या कर रहे हैं आप, क्यों सुन रहा हूं. और महीने के अंत में तो चिन्मय मिशन में गुरु दक्षिणा देता हूं. व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इनसाइड? हैव यू एवर थॉट?
प्राकेतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि। मतलब इस वेद में जितनी प्रकार की कर्म था, मतलब हमारे लिए सारे कर्म का वर्णन समाप्त किया हुआ है। सारे कर्म की आश्रय क्या है? प्राण है। उस प्राण का भी उपासना के बारे में इस वेद में बताया गया है। कर्मांग साम विषयानि च। कर्म की अंगीभूत जो साम वेद, जो सामगान है, उसके बारे में भी इधर बताया है। सो ये कर्मांग साम क्या है ना? बहुत सारे यज्ञ है जिसकी अंग स्वरूप इस साम की उपासना करना जरूरी होता है। जस्ट मैं नाम बताऊंगा, डोंट आस्क मी फर्दर डिटेल्स ऑफ इट। तो ये जो कर्म है, ये कर्म 5 भाग में विभक्त है। इसे बोलते हैं पांच भक्ति का साम। हिंकार साम, प्रस्ताव साम, उद्गीत साम, प्रतिहार साम, निधन साम। 5 प्रकार। और कोई कोई बोलते हैं नहीं, 7 भाग में विभक्त है। इसे बोलते हैं साप्त भक्ति का साम। वो क्या है? हिंकार साम, प्रस्ताव साम, उद्गीत साम, देन प्रतिहार साम, निधन साम, आदि साम, उपद्रव साम। तो इसको कैसे उपासना करते हैं ना? कोई पृथ्वी, द्वौ, अंतरिक्ष, ये सब चिंता करके साधना करते हैं। तो गायत्री के बारे में भी ये साम है। गायत्री के साथ संबंध युक्त जो साम है, गायत्री मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम नहीं। वो तो एक गायत्री, पॉपुलर गायत्री मंत्र है सूर्य देवता के लिए। गायत्री छंद की नाम है। जैसे अनुष्टुप छंद है ना, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जहां पर लेटर की विन्यास है 8 8 8 8 करके। ऐसे ही छंद है त्रिष्टुप छंद। अधस्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। और हम लोग जब कठोपन, ये हमारा विवेक चूड़ामणि की चर्चा किया, तब कितना सारे छंदस हम लोग चर्चा किए थे। एटलीस्ट जैसे शार्दूल विक्रीडित छंद, मत्त मयूरी छंद। लाइकवाइज गायत्री इज अनदर छंद। उस छंदस की नाम है गायत्री। तो गायत्री मंत्र मतलब गायत्री छंद विशिष्ट मंत्र। लेकिन कुछ कुछ चीज पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे असली है फोटोकॉपियर,
लेकिन उसको पहला निर्माता थे जेरोक्स कंपनी। अभी हम लोग नहीं बोलते कि फोटोकॉपी करके लाओ, इसे बेटा 2 कॉपी जेरोक्स करके लाओ। तो ये जेरोक्स कंपनी का नाम है, लेकिन अभी यही सब कुछ हो गया कि इनका जेरोक्स कॉपी कहाँ है, जेरोक्स लगेगा। अरे जेरोक्स तो कंपनी का नाम है, शायद वो कंपनी उठ गया, लेकिन वो इम्प्रिंट अभी भी हमारे मन में है। लाइकवाइज गायत्री मंत्र मतलब सिर्फ एक नहीं, हजारों गायत्री है। जो मंत्र उस गायत्री छंदस में लिखा हुआ है उसे ही गायत्री मंत्र बोलते। तो हम लोग पता है इसलिए बोलते, भाई गणपति का गायत्री बताओ, माँ दुर्गा की गायत्री बताओ, शिव जी का गायत्री बताओ, ठीक है ना। और बता, जब लोग पूछते तुम्हारा तुम उपनयन हो गया, गायत्री मंत्र मिल गया, मतलब सूर्य गायत्री। क्लियर। तो इधर शाम में भी गायत्री है, ठीक है। तो साम विषयक जो दर्शन है वो भी है, मतलब उपासना। वंशांतम, वंशांतम मतलब गुरु शिष्य जो परंपरा हमारे है, सदाशिव समारंभम। तो इधर ऐसे ही है। और इसका फल क्या है ये भी बताया है। मतलब कि नवम अध्याय के पहले जो अष्टम 8 अध्याय, उसमें कर्म एवं ज्ञान मतलब उपासना, ये कैसे आप अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ रीति कब होगा, क्या होगा, कब बैठेंगे, कैसे उनका अग्नि चयन होगा, यज्ञशाला की साइज क्या होगा, उसका ईंटा कैसे करके कितना काउंटिंग में ईंटा रहेगा, उनका शेप क्या होगा, ये सब बताया हुआ है। अगर ये संपूर्ण रूप में कोई अनुष्ठान कर पाएंगे तो उसमें लिखा है निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्वशुद्ध्यार्थम भवति। मतलब इतना कुछ करने के बाद क्या होता है, जो निष्काम मुमुक्षु है, डिजायरस फॉर लिबरेशन, उनका सत्व शुद्धि मतलब चित्त शुद्धि होता है। निष्काम मुमुक्षु क्यों बताया गया है? इसलिए कि कर्म जो व्यक्ति कामना करते हैं, हम लोग कर्म कामना करते हैं। आप लोगों से पूछो क्यों नहीं कर पाते आप? स्वामी जी क्या करूं, ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह 9 बजे ज्वाइनिंग है, 8 बजे से रेडी करना पड़ता है खुद को। आपका क्लास 7:30 बजे, आप बोल दिया 10 मिनट मेडिटेशन टाइम, तो 7:40 में हम लोग चालू करते, 20 मिनट सुनकर क्या फायदा होगा। फिर भी चला के रखता है, वीडियो ऑन नहीं करूंगा स्वामी जी, यू प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी, आई विल बी इन द बस और इन द कैब। कर्म, ठीक है, कर्म छोड़ दिया, अभी खाली है नहीं, यू हैव नो आइडिया घर में कितना काम रहता है। रिटायरमेंट के पहले भी कर्म है, उसके बाद भी कर्म है। तो मुमुक्षुत्व इट इज देयर, वो मैं भूला नहीं स्वामी जी। जिनकी 3 कुल में कोई नहीं है, वो भी 6-7 बिल्ली लेके पाल के संसार कर रहे हैं। संसार हमारे जीन में आ गया है। अब जितना भी बड़ा एजुकेटेड बनो, कुछ भी बनो, ये हमारा जीन में आ गया, मैं तो संसारी हूं। और मैं नहीं, सब में दल करना है, बंगाल की लोग है ना,
हम लोग तो संसारी है। अरे आपके बारे में बताइए, बाकी दूसरे के बारे में छोड़ दीजिए। कोई संसारी नहीं है। संसारी इज अ डिसगाइज, एक छद्मवेश है। ये आपकी गलत फहमी है। कोई संसारी नहीं। संसारी कैसे है? जैसे आप एक पेड़ को ऐसे टाइटली एम्ब्रेस्ड एंड शाउटिंग, मुझे छुड़ा दो, मुझे छुड़ा दो। अब पता नहीं आप लोग, लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई, बड़ा नहीं, जो मोहल्ले में छोटा मोटा लड़ाई होता था ना, ऐसे कोई आता था, उनका ताकत नहीं है, लेकिन बोलते थे छोड़ दो मुझे, कोई पकड़े ही नहीं है। लेकिन दृष्टि आकर्षण करने के लिए ये सब करते थे। इस संसार भावना भी ऐसे ही है। विश्वास कीजिए मेरे बात, आचार्य के शब्द में विश्वास कीजिए। आप जितनी बंधन से बंधा हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा बंधन एक स्वामी के रहते हैं। सिर्फ बाधा नहीं है, बंधन है, लेकिन बांधा नहीं है। आपके जितना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कई गुना ज्यादा एक संत के होता है। फिर भी उनके जीवन में प्रायोरिटी साधना होता है, भगवान होता है। इससे फायदा क्या होता है? बंधन रहता है, लेकिन बांधा नहीं पड़ता। सुबह से उठकर शाम तक, रात तक, एवरीवेयर दे कॉमन स्पिरिचुअलिटी, दिन बाकी सब। कोई संत खाना बना के लोगों को खिलाते हैं। वो कभी नहीं बोलते परेशान हो गया, क्योंकि वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, खाना नहीं बनाते। जब खिलाते हैं, लोगों को खिलाते नहीं, भगवान को खिलाते हैं। इसलिए वो आनंद की स्थान है। और आपके लिए संसार यंत्रणा की स्थान है। आनंद का भी है, नहीं तो रहेंगे क्यों? लेकिन पेनफुल आनंद, बिकॉज you have designated yourself as samsari. That's why all the pains are following you. अभी अगर कोई ऐसे निष्काम भाव से मुमुक्षु नहीं होंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो पूरा जिंदगी भर कर्म करेंगे, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होगा। आप बोलेंगे बचपन से पूजा करते आ रहा हूँ, सत्संग सुनते आ रहा हूँ, ईश्वर में विश्वास मेरा जन्म से पहले ही है, फिर भी चित्त शुद्धि नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज आप नाव चला रहा है घंटों तक, दिन रात, महीना बीत गया, बरस बीत गया, लेकिन नंगर उठाया नहीं। और ड्रीम है कि इस समुंदर को, इस नदी को पार करके उस पार में जाना है। जीवन की नंगर को उठाओ, लिफ्ट अप योर एंकर। अनलेस एंड अनटिल you make your boat free, all the parishram will go in vain. चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धि के लिए कर्म। अगर मेरे पास बहुत काम्य कर्म है, आई डिजायरस, डिजायर प्रॉम्प्टेड वर्क, क्या होगा?
सकामस्य तु ज्ञान रहितस्य, जो व्यक्ति कामना युक्त रहते हैं वो ज्ञान रहित होता है, उनके पास ज्ञान नहीं आता। जो ज्ञान रहित है वो उपासना रहित है। केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि, वो यंत्रवत कर्म करते हैं। श्रुति में इधर है, स्मृति में, अभी तो श्रुति स्मृति चला गया, धर्म जीवन में सब मनमानी चलता है। पहले तो बोलते हैं मेरा सांस ने सिखाया है, बाद में ये इट्स माय ओन क्रिएशन, भगवान को मैं ऐसे करके ऐसे करता। क्यों करते हैं ये पिक्यूलियर? नहीं, मुझे लगता है ये करने से। पूजा पद्धति इज वैदिका, आप जानते ही नहीं कैसे करना है। दैट इज वाई इन योर लाइफ यू नीड अ गुरु। गुरु विल गाइड यू हाउ टू डू उपासना। क्लियर? सो ऐसे कर्म करके ही कोई दक्षिण मार्ग में जाते हैं तो कोई उत्तर मार्ग में जाते हैं, लेकिन उनका जन्म मृत्यु का प्रवाह चलता ही रहता है, क्योंकि उन्होंने दे हैव पैम्पर्ड their desire prompted work, mainly they have pampered their desires। लेकिन जिन्होंने चित्त शुद्ध करके श्रवण नहीं किया उनको क्या होगा? क्रमः मुक्ति। मतलब धूम आदि मार्ग है, अर्चिरादि मार्ग है, मतलब मृत्यु के बाद कोई लोक में गया, उधर का जब कर्म समाप्त हुआ दूसरे और एक लोक में गया, ऐसे करके क्रम मुक्ति होता है, वेद ने बोल रहा है। ऐसे करते 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 जब कर्म फल क्षय होता है तब ब्रह्मलोक में मुक्त हो जाता है। तो श्रुति माफिक कर्म मतलब याग यज्ञ इत्यादि। स्मृति और स्मार्त कर्म क्या होता है ना? कुआं खनन कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, स्कूल के लिए डोनेशन, किसी का बीमारी है, बीमार मतलब रोग है, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं, इसे पुण्य लाभ होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात हो गया कि इसलिए वी डू कर्म। क्लियर? तो अब क्या होता है, वेद में लिखा है जो व्यक्ति शास्त्र विहित नहीं है, जो कर्म, जो प्रवृत्ति स्वाभाविक, जो शास्त्र विहित नहीं है, उनका क्या होता है ना? उनके मृत्यु के बाद पशु जन्म या स्थावर, मतलब पेड़ पौधा पहाड़, ऐसे स्थावर जन्म होता है। छांदोग्य उपनिषद 5.10.8 मंत्र है, उसमें इसके बारे में बताया है। अथा एतयोः पथोः न कतरेण चना, मतलब जो व्यक्ति श्रौत कर्म, मतलब वेद के अनुसार कर्म नहीं करते, या तो स्मृति शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करते, जो अपना मनमानी से स्पिरिचुअल लाइफ लीड करते हैं, उनका क्या होता है? वो उत्तर मार्ग से भी नहीं जाते, दक्षिण मार्ग में भी नहीं जाते। उनका क्या होता है? तानी मानी क्षुद्राणी असकृदत आवर्तीनी भूतानी भवंती। ऐसे व्यक्ति छोटा छोटा प्राणी होकर असकृत आवर्तिनी, वारंवार जन्म मृत्यु के चक्र में आकर प्रदक्षिण करते हैं।
आवर्तन हो जाता है। जायस्व म्रियस्य इति एतत् तृतीयं स्थानम। श्रुति बोल रहा है ये जो जन्म मृत्यु वारंवार हो रहा है, ये जायस्व म्रियस्व नामक तृतीय स्थान, ये पितृयान भी नहीं है, देवयान भी नहीं है। और ये स्थान कहीं से कहीं जाने का जरूरत नहीं, उत्तर पथ में भी जाना नहीं पड़ता, दक्षिण पथ में भी जाना नहीं पड़ता। मतलब देवयान पितृयान ये दोनों पथ की किसी में ही नहीं जाता। वो व्यक्ति होता है जन्म मरण रूप तृतीय श्रेणी। प्रजा तिस्रो अत्यायम युहु इति मंत्रवर्णा। ऐतरेय आरण्यक में है कि वेद मंत्र की अक्षर अर्थ से जाना जाता है कि जीव तीन प्रकार की होता है, जरायुज, अंडज, स्वेदज। ठीक है। तो जरायुज मतलब ऊम से जो निकालते हैं, जैसे हम लोग हैं जरायुज, मातृ कोख से पैदा होते हैं। एक है अंडज, फ्रॉम द एग्स, लाइक बर्ड्स एटसेट्रा, फिश। एक है स्वेदज, मतलब स्वेद का मतलब है पसीना, पसीना मतलब गंदगी से पैदा होता है। और आनंदगिरी अपनी टीका में बोल रहा है स्वेदज मतलब उद्भिज, उद्भिज। लेकिन सायन आचार्य वेद की भाष्यकार, उन्होंने स्वेदज को स्वेदज ही बताया है। जो व्यक्ति तर्क, वृथा तर्क करते, लाइन से तर्क नहीं, क्योंकि तर्क ही हमारे शास्त्र की मूल है। लेकिन तर्क विल बी इन द लाइट ऑफ शास्त्र। जो ऐसे करते नहीं, जो श्रद्धा रहित है शास्त्र वाक्य में, उन लोग पितृजान या देवजान कोई भी मार्ग नहीं जाते। उन लोग मृत्यु के बाद ही फिर से इस लोक में वापस आ जाते। इसीलिए हमारे शास्त्र में कोई व्यक्ति की शरीर जाने के बाद हम लोग नहीं लिखते हैं रिप 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 रिप, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। ये हमारा संस्कृति का कल्चर नहीं। क्योंकि दूसरे मजहब में क्या है ना, उन लोग सोचते हैं कि ये शरीरी आत्मा है, तो मृत्यु हो गया है मतलब उनको कब्र में दे दिया। उस कब्र में ऐसे नहीं कि उनका कयामत या विचार उसी दिन होगा। हो सकता है उसी दिन हो गया, हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 100 साल बाद उनका विचार होगा। तब तक रेस्ट इन पीस इन दैट। कब्रस्तान कैसे होता है आपको पता है? उसमें रीप मीन्स रेस्ट इन पीस। हमारे सनातन मार्ग में रेस्ट इन पीस नहीं है। मरने के बाद ही तुरंत उनका गति हो जाता है, उनका कर्म वासना के ऊपर निर्धारित होकर तुरंत। देयर इज नो स्कोप फॉर टेकिंग रेस्ट, हैविंग रेस्ट। और जो लोग वैदिक मार्ग फॉलो नहीं करते, उनका सिर्फ इस जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी यंत्रणा होता है। नहीं, इस जीवन में कोई यंत्रणा नहीं,
We eat, we drink, and we become merry. पता है, आपको भी पता है आपकी मन की अवस्था क्या है, कितना छोटा छोटा चीज आपको हिला देता है. यू नो, आई नो. If you really want to establish peace inside you, please try to follow the Vaidika Marga. Harihi Om Tat Sat.